Hi everybody. So we have been seeing in my last few videos since I started recording on YouTube that we have covered a lot of women related and child related crimes in the BNSS, BNS and various other acts. Let's take a recap of what we have done till now. Basically we have covered chapter 5 of BNS जिसमें कि हमने सारे विमेन रिलेटेड क्राइम्स डिस्कस किए हैं. उसके बाद हमने पॉक्सो एक्ट किया. देन वी टुक अप इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, सेक्शन 125 मेंटेनेंस, दैट इज़ 144 नाउ. चैप्टर 10 जो BNSS का वो हमने पूरा किया. वी कवर्ड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो मेरे लास्ट 2 वीडियोज़ हैं. दे आर लॉन्ग वीडियोज़, यू कैन सी दोज वीडियोज़ ऑल्सो. देन वी कवर्ड वन वीडियो आई मेड ऑन द क्लिनिक प्लस एड, जिसमें कि विमेन के फीटिसाइड एंड एट्सेट्रा पे आई स्पोक. सो बेसिकली नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल, आई वॉज थिंकिंग दैट हाउ शुड आई स्ट्रैटेजाइज माई चैनल. अगर हम सीधा BNSS और एट्सेट्रा डिस्कस करते रहेंगे तो मे बी इट्स लिटिल अनइंटरेस्टिंग, और इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए. इसलिए वॉट आई हैव थॉट इज़, जब से एक लड़की जन्म लेती है, ऑब्वियसली आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन विमेन लॉज राइट नाउ, इंक्लूडिंग चाइल्ड लॉज एट्सेट्रा, बट इसके बाद हम और भी चीज़ें करेंगे. राइट नाउ वी आर डीलिंग विद विमेन एज अ प्राइमरी फोकस ऑफ माई यूट्यूब चैनल. तो जो भी लॉज रिलेटेड टू विमेन है, तो एक लड़की जब पैदा होती है, जब वो जन्म लेती है, तब से ही उसके लॉज बनने इंडिया में शुरू हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉट हैव डन इज दैट आई हैव डिवाइडेड माई कॉन्टेंट इनटू phases of a woman's journey. For example, if she is, अब अगर वो जन्म लेती है तो कौन कौन से acts तब काम में आते हैं. For example, जब वो when she just takes birth, so at that time we have the medical termination of pregnancy act, कि किन cases में terminate होनी चाहिए pregnancy. कोई भी बच्चा हो सकता है, not girl or boy, this applies to everybody. Then preconception and prenatal technique act, Surrogacy Act, Assisted Reproductive Act, Indian Succession Act. So what I've done is that I've divided further content into the age starting from the birth of a girl child. Then we come to जब वो mature होती है लड़की, तो कौन कौन से acts आते हैं. Hindu Minority and Guardianship Act, then Child Marriage and Restraint Act, Sati Act, then Prohibition and Child Marriage Act, DV Act, Domestic Violence जो हमने किया है, DV Act के rules, National Commission of Women Act. So basically then she enters the age when she starts working. So then Sexual Harassment of Women Act. So I have divided my content into these phases: when a girl is born, and when she progresses into mature age, then she goes into her age when she is working. Finally she comes to the marriageable age, जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया, जैसे कि हिंदू वुमेन के जितने भी लॉज हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट, देन HAMA जो कि मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट है, देन फॉरेन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, डाउरी एक्ट. सो ऑल दैट कम्स देयर. देन अल्टीमेटली व्हेन शी enters marriage, then she gets pregnant. Maternity benefit act, right of self defense section 100 है, even that we have discussed. So this will be the approach further in all my videos. So आज जो हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे पहला एक्ट which I'm going to discuss now, which I'll introduce right now, is Medical Termination of Pregnancy Act. Now if you remember that we had discussed this earlier also in a video which I'll be posting below. इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए. अबॉर्शन जिसे कहते हैं, terminating your pregnancy, when a woman can do it, when a woman cannot do it. I have already discussed various sections earlier also in this. I'll put that video underneath also in my comment section. So basically medical termination of pregnancy जो act था, it came up in 1971. Further it was amended in 2002, 2004, 2019, 2021. Termination of pregnancy, what does it mean? It means when a pregnancy is terminated under the guidance of medical practitioners.
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जब एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, दैट मीन्स दोज सिचुएशंस कम अंडर दिस एक्ट. अब जो भी लेडी प्रेग्नेंट है, चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर है, उसके लिए दिन ब दिन रिस्क है. फॉर एग्जाम्पल, इफ शी इज़ in the state of pregnancy, it is a risk for her. Every day is a risk for her. रेप विक्टिम्स जो होती हैं वो यंग होती हैं, उनकी तो गलती नहीं होती, बट दे गेट प्रेग्नेंट. सेक्शुअल असॉल्ट विक्टिम्स होती हैं. देन देर आर अदर केसेस वेयर देर इज़ फोर्सफुल इंटरकोर्स ड्यूरिंग मैरिज. मतलब इन सब केसेस में अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट और उसके बाद इफ़ शी डज नॉट वांट टू कीप द चाइल्ड और इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ फॉर हर, उन केसेस में दिस एक्ट कम्स इनटू बीइंग, जिसका अमेंडमेंट काफ़ी बार हो चुका है जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हुई वुमेन की. सो दिस एक्ट वाज अमेंडेड. अब टाइमली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्प्लिकेशंस दोनों मदर और चाइल्ड के लिए आ जाती हैं कुछ केसेस में. अब पहले क्या होता था कि जो अबॉर्शन था दैट वाज गवर्नड अंडर IPC, जो कि अब VNS बन चुका है. अबॉर्शन केम अंडर दैट. उसके बाद जो है अबॉर्शन IPC में आ गया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. 89 to 90 सेक्शन हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में. आई पुट दैट अंडर in my description section also. So when abortion became criminal, उसके बाद ये वाला जो एक्ट था वो और भी ज़्यादा गवर्नेंस में आ गया, बिकॉज अबॉर्शन इलीगल हो चुका था, बिकॉज इसका मिसयूज़ हो रहा था. अबॉर्शन क्लोज डोर्स में होता था. अबॉर्शन अनहाइजीनिक कंडीशंस में होता था. जब लेडीज़ के बच्चे हो जाते थे और वो किसी भी जाके क्लिनिक पे इलीगली अबॉर्शन करा लेती थी वॉलंटरीली, जिसमें कि वो राइट वे से होता नहीं था और उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आती थी, बच्चे को भी और उनको भी. देन देयर वर इन्फेक्शंस एंड ऑल. सो इसके बाद जो है इस एक्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए. हर एक अमेंडमेंट में कुछ ना कुछ चेंज आया इस एक्ट में. एंड लीगली गाइडलाइंस बनी जिसमें कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज द विल ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन शुड बी देयर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. ये सारा कोर है इसका, कि उसकी विल के बिना, जो प्रेग्नेंट लेडी उसकी विल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. अब बेसिक जो 3 कंडीशंस बोलो या फिर द बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स व्हाई दिस एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड वाज हेल्थ मेजर नंबर 1, रिस्क ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमन हु हैज़ कंसीव्ड द चाइल्ड. इस रिस्क को लेके चले थे, दैट्स व्हाई दिस एक्ट केम इनटू बीइंग. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इसका ये मतलब है कि व्हेन शी इज़ अंडर अ बिग मेंटल ट्रॉमा, व्हेन शी इज़ बीन रेप्ड, सेक्सुअली असॉल्टेड, इंटरकोर्स हुआ है उसका, या फिर ल्यूनेटिक वुमेन है, ल्यूनेटिक मीन्स पागल, उस केस में, इस केस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अबॉर्शन अलाउ कर दिया था अंडर द गाइडेंस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. यूजेनिक ग्राउंड्स, दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ बॉर्न विद डिफॉर्मिटीज़. कुछ केसेस में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि ये बच्चा अगर पैदा होगा तो इस बच्चे की जो कंडीशन है वो लिवेबल नहीं होगी, मतलब ये बच्चा अच्छी तरह अपना जीवन नहीं बिता पाएगा. उन केसेस में डिजीज़ जब होता है बच्चे को, तो उस केसेस में भी दिस एक्ट केम इनटू बीइंग. तो ये 3 मेन इसके फैक्टर्स थे, ग्राउंड्स थे, जिसमें ये एक्ट आगे से आगे अमेंड हुआ एंड एक्सेप्ट हुआ सोसाइटी में. देन अमेंडमेंट्स और फर्दर आए, जिसमें जेस्टेशन पीरियड, पहले क्या होता था 20 हफ्ते से नीचे ही बच्चे को लीगली अबॉर्ट करना. अब क्या है 24 वीक्स और मोर देन 24 वीक्स ऑल्सो वॉज इंक्लूडेड. जब 24 या 20 हफ्ते से ज़्यादा का बच्चा होगा तब भी कुछ केसेस में उसको मेडिकली लीगली टर्मिनेट कर सकते थे. अब कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली कंडीशन है, इट विल बी डन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. ठीक है, RMC जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही ये चीज़ कर सकते हैं. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी. अब सबसे पहले जो हम गाइडलाइन देखेंगे वो है सेक्शन 3 जो है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. इसमें कंडीशंस मेंशन की है, कब प्रेगनेंसी हो सकती है, कितने हफ्ते में, व्हाट आर द कंडीशंस, क्या है. नाउ व्हेन द चाइल्ड इज डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स, मतलब वो 20 हफ्ते से कम है जब उसकी एज,
अल्ट्रासाउंड होता है, हमें पता चलता है कि 20 हफ्ते से कम है, तब क्या होगा। सेक्शन 3 क्लॉज 2 आता है इसमें ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसमें ये कहते हैं कि व्हेन द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिलीव्स, अब इसमें क्या है, चलो हम उसका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को हम डॉक्टर बोलते थे, सो डॉक्टर व्हेन ही बिलीव्स ओके इन दिस नाउ ओनली वन डॉक्टर इज नीडेड, जब 20 हफ्ते से नीचे प्रेगनेंसी है तो एक ही डॉक्टर रिक्वायर्ड है। अगर वो बिलीव करता है गुड फेथ में, अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग, अपने जितना भी उसका मेडिकल एक्यूमेन है उसके हिसाब से, व्हेन ही बिलीव्स कि नंबर 1 रिस्क ऑफ लाइफ है बच्चे और माँ दोनों को, मेंटल एंड फिजिकल दोनों, द वुमन इज सफरिंग मेंटली एंड फिजिकली एंड देयर इज रिस्क ऑफ लाइफ टू द वुमन, इन दैट केस इट इज टर्मिनेटेड विद द हेल्प ऑफ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर की वजह से। देन सेकेंड इज द चाइल्ड इज अबनॉर्मल फिजिकली एंड मेंटली, अगर पता चल जाता है अबनॉर्मैलिटी है उस केस में विद द हेल्प ऑफ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर ये अबॉर्ट हो सकता है। अब इसमें एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब अगर एक मैरिज में फॉर एग्जांपल या फिर किसी भी रिलेशनशिप में इफ़ द चाइल्ड इफ़ दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस जैसे कॉन्डम्स एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं बट फिर भी बच्चा हो जाता है विदाउट विल विदाउट प्लानिंग, उन केसेस में लड़की की मेंटल हेल्थ पे असर आता है। दैट्स वाई in these cases failure of contraceptive is also included and that is included in the mental health column, मतलब उसकी mental health पे बेसिकली लड़की अगर अपना करियर बनाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, पर वो बच्चा आ गया तो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इन दोज केसेस ऑल्सो शी कैन टर्मिनेट इफ द चाइल्ड इज डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स। सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज अगर रेप होता है देन कोई सेक्शुअल असॉल्ट इंटरकोर्स होता है जिसमें बच्चा पैदा हो जाता है, उन केसेस में शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेगनेंसी, सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर मेंटल हेल्थ कॉलम, राइट। अब 3 क्लॉज 2 और 3B अगर हम सेक्शन देखें, सो इन दोज केसेस द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी व्हेन इट इज़ अबव 20 वीक्स, मतलब अगर वो 20 से 24 हफ्ते के बीच में आता है तब भी ये 2 कंडीशंस में वो टर्मिनेट हो सकती है, रिस्क ऑफ लाइफ है अगर, या फिर जो चाइल्ड है वो अबनॉर्मल है, इन 2 केसेस में टर्मिनेट कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए होते हैं, 2 डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड, कंसेंट ऑफ 2 डॉक्टर्स इज रिक्वायर्ड एंड देन इट कैन बी डन। इसमें सेक्शन 5 में रूल्स बता रखे हैं, इवन व्हेन, अगर कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी है, अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस आता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है और लड़की जो है बहुत इमरजेंट सिचुएशन में एंड शी हैज़ टू बी अबॉर्टेड, अगर उसका चाइल्ड अबॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है तो उस केस में इवन विद 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर इमीडिएटली करना है तो उसमें भी हो सकता है, बट अदरवाइज 20 हफ्ते से 24 हफ्ते में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स 2 डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड। अब जो रूल्स हैं इसके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रूल्स भी हैं, उसमें उन रूल्स में बताया गया कि किन केसेस में अप टू 24 वीक्स they can be aborted. Sexual assault survivors, rape victims, incest victims, इन केसेस में जब बच्चा पैदा हो जाता है वो माइनर्स, बट माइनर्स के केस में एक है कि माइनर्स में गार्डियन की कंसेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता, गार्डियन का कंसेंट लेके माइनर का भी अबॉर्शन हो सकता है। चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, फॉर एग्जांपल अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा है या कोई विडो हो गई ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी तो उसकी अपनी विल है, अगर वो 24 हफ्ते तक है अप टू 24 वीक्स तो शी कैन टर्मिनेट, बिकॉज अगर फादर नहीं है तो केयर टेकर नहीं है, सो उसकी अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो शी कैन ऑल्सो टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। देन फिजिकल अगर उसमें फिजिकल अबनॉर्मैलिटी है वुमन में, इफ़ शी इज़ नॉट हेल्दी इनफ देन ऑल्सो इट कैन बी डन। मेंटली इल है, रिटार्डेड है, उन केसेस में भी शी कैन डू इट। फीटल मैलफॉर्मेशन, अगर फीटस ही हेल्दी नहीं है और उसकी मैलफॉर्मेशन है, इन दोज केसेस ऑल्सो इट कैन बी डन। कोई डिजास्टर या इमरजेंसी के बीच में अगर ये हो रहा है, so in those cases the child cannot be taken care of, so in those cases also it can be terminated if the age is up to 24 weeks, 24 हफ्ते तक का बच्चा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बियॉन्ड 24 वीक्स क्या होता है। कुछ केसेस में इवन इफ़ द फीटस या फिर वो जो बच्चा है पेट में 24 हफ्ते से ऊपर चला गया तो उन केसेस में क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो। इस पर रील्स भी डलती रहेंगी पैरेलली, आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।